بار بار اسلام آباد اور بار بار پاکستان کی معیشت پر حملہ. تکلیف کس بات کی ہے کہ مہنگائی 40% سے 7% پہ آ گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 40,000 سے 85,000 سے اوپر چلی گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور اور روپیہ تکڑا ہے؟ آپ کو تکلیف IMF کی ڈیل کی ہے؟ آپ کو تکلیف SCO سے پاکستان کی مضبوطی کی ہے؟ یا دوبارہ چائنیز وزیر اعظم کے آنے پر CPEC 2 کے آغاز کی تکلیف ہے؟ کل پھر ایک دفعہ PTI نے 15 تاریخ کو احتجاج کی کال کا اعلان کیا ہے، اور یہ احتجاج کی کال نہ کوئی سیاسی فیصلہ ہے اور نہ کوئی سیاسی جماعت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ ملکی مفاد سے ٹکراتا ہو. اس طرح کے فیصلوں کی پوری تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کوئی 1 سال 2 سال 4 سال سے نہیں، PTI کے وجود سے اور خصوصاً 2014 سے اس کا آغاز ہوا. سب سے پہلے CPEC 1 جب ہونا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا، تو 2014 میں دھرنا CPEC روکنے کے لیے دیا گیا. حکومت گرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت CPEC روکا جائے. اس کے بعد سے یہ کئی مواقع پر یہ لوگ نشاندہی کرتے رہے. فورن فنڈنگ کی بات ہوئی، اس فورن فنڈنگ میں پتہ چلا کہ اسرائیل اور بھارتیوں کے پیسے ہیں، مگر سٹے پر سٹے چلتا رہا، کسی نے توجہ نہ دی. اس کے بعد 2014 CPEC کو روکنے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد یہ کوششیں جاری رہیں، اور اسی چیزوں کا ری پلے اور وہی تسلسل سائفر لہرا کے کیا گیا. اور اس کے بعد IMF کو خط لکھ کر کیا گیا. IMF کو خط لکھنے کا مقصد پاکستان کو ڈیفالٹ اور پاکستان کو سری لنکا بنانا، پاکستان اور ریاست کو بلیک میل کرنا تھا. جب وہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اداروں پر حملہ. جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ رکوانے اور اپنی مرضی کا سربراہ لگانے کے لیے لانگ مارچ اور دھاوا بولا گیا. اور یہاں ختم نہیں ہوا، پھر 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد یہ تسلسل جاری رہا. پھر دوسری دفعہ جب IMF کی ڈیل ہونے لگی، پھر خط لکھے گئے. اور آج سے 1.5 ہفتہ پہلے جب پاکستان میں چائنیز اور پاکستان میں سعودی انویسٹرز پاکستان میں موجود تھے، اس موقع پر احتجاج کے نام پر پھر دعویٰ بولا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا احتجاج ہے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے وجود کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ریاست بلیک میل ہوگی تو ان کے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں گے. جان بوجھ کر SCO کانفرنس جس دن عروج پر ہوگی، اور یہ SCO کانفرنس کوئی عام کانفرنس نہیں ہے، پہلی اسلامی سربراہی جو ایک کانفرنس بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سب سے بڑی کانفرنس ہے. 200 سے زیادہ وفود، بین الاقوامی وفود اسلام آباد اور پاکستان آئیں گے. 200 سے زیادہ وفود اور ان کی ایڈوانس ٹیمیں آلریڈی اسلام آباد آ چکی ہیں. SCO میں کون سے اہم ممالک ہیں؟ اس میں چائنا، رشیا، اس میں وہ ممالک کی تعداد زیادہ ہے جو آج اسرائیل کے مخالف کھڑے ہیں. تو SCO کانفرنس سے تکلیف آپ کو اس لیے ہے کہ یہ اسرائیل مخالف جو ممالک ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوں گے. SCO سے کسی کا سیاسی بھلا نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے.
पाकिस्तान की मैशत चलेगी इससे, पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, इस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते, क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये एससीओ पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फर्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में पीटीआई का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियां वाली एयर बेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो जाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूं कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक कहते हैं कि आईनी हकूक होने चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आईनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान की मईशत का। किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी पीटीआई की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भाई आप तो कहते हैं कि उसने वहां पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमजोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ आईएमएफ की डील की है, आपको तकलीफ एससीओ से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर सीपैक 2 के आगाज की तकलीफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। इसराइल के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिए गए पैसे हलाल करने के लिए ये एहतजाज रखा जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये वाला इस वक्त ये मुमालिक इस फलस्तीन के हक की बात करेंगे। और ये अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कोई करके एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताश कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये एहतजाज
नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है, उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी का लगता है कोई जोड़ है। जितनी इनकी मुरम्मत की जाती है, उतनी महंगाई भी नीचे आ रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जमात सियासी जमात नहीं है। जो लोग इसके लिए बार बार इसके साथ खड़े होते हैं, मैं मौलाना साहब से भी कहूंगा कि उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी कि ये एहतजाज ना करें। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमजोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो या सऊदीज एम्बेसडर और चाइनीज वजीर आजम की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें खैरो अफियत से अमनो अमान के साथ होंगी। मैं दोबारा फिर एक दफा कहूंगा, अपनी दी गई इस एहतजाज की कॉल पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप एक्सपोज हुए हैं। आपने अपने इरादों से पर्दा उठाया है। एज ए पाकिस्तानी इस पे गौर जरूर कीजिएगा। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा एससीओ कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा सऊदीज, चाइनीज और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और मुमालिक के सरबराह जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के इकोनॉमी की हर चीज के साथ खड़े हैं। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के 75 साल में अहम तरीन होने वाली कॉन्फ्रेंस, दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 200 वफूद शामिल हो रहे हैं, उसमें आके एहतजाज करके इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा एक दफा ये बात क्लैरिटी से कह दूं, ये ना सियासी जमात का इकदाम है, ना सियासी जमात इस तरह कर सकती है, ना पाकिस्तान का आइन ऐसी सियासत की इजाजत देता है। और क्लैरिटी के साथ मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि कॉन्फ्रेंस भी होगी, पार्लियामेंट भी अपना काम करेगी।